ਹੈਲਥ ਪਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ। ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਿਲ। ਚਾਹੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਾਰਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 35 ਇਅਰਸ 올ਡ ਹੈਡ ਅ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ, ਸਰਜਰੀ, ਬਾਈਪਾਸ, ਸਟੰਟ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ EECP ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਈਪਾਸ ਥੈਰੇਪੀ। ਇਸ ਨੂੰ ECP ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਰਤਨ ਹਸਪੀਟਲ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 280 ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਜੋ ਕਿ MD MACP USA ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ 6 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ 6 ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਫਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ 50+ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ, ECG ਔਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਔਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਰਤਨ हॉस्पिटल ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾत डॉक्टर बलराज गुप्ता जी के नाम। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर बलराज गुप्ता जो 40 साल से रतन हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं हार्ट में और शुगर में दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज से बहुत साल पहले जब हार्ट अटैक किसी को आता था या उसका नाम आता था तो घर में एक सन्नाटा छा जाता था। क्या कहना चाहेंगे कि आजकल हार्ट अटैक आ भी रहे हैं और उसके निवारण के लिए आप डॉक्टर्स ने बहुत नई टेक्निक्स लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात सही है। हार्ट अटैक की जो बीमारी है पहले से बहुत बढ़ गई है, साथ खास करके साउथ एशिया में और साउथ एशिया में खास करके भारत में, और अगर आगे जाएं तो भारत में खास करके नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में। लक्षण की आपने बात करी है। देखिए, हार्ट अटैक जो है उसमें क्लासिकली छाती में दर्द होती है, बहुत तेज़ दर्द होती है छाती में, सेंटर में दर्द होती है। दोस्तों, अगर कोई आदमी मेरे पास आता है, कहता है मेरे को बाएं साइड पे दर्द हो रही है, तो मेरे को उसके हार्ट की बीमारी होने के चांस कम लगते हैं। दर्द के साथ पसीना आना बहुत तेज़, दर्द का बाईं बाजू में जाना, गले की तरफ जाना, जाज़ की तरफ जाना, बैक की तरफ और कई बार पेट की तरफ भी जा सकती है। जब तेज़ दर्द हो, पसीना आए और साथ में रंग समझ लो चेहरे का बिल्कुल सफ़ेद हो जाए और घबराहट हो, तो ये हार्ट अटैक के लक्षण हैं। पर यही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक बिना किसी लक्षण के भी हो सकता है, जिसको हम साइलेंट हार्ट अटैक कर रहे हैं। दोस्तों, शुगर के जो रोगी हैं उनको खास करके इस साइलेंट हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा डर रहता है। लक्षण हो गए, कई बार जैसे मैंने बताया कुछ भी नहीं होता, सांस ही सिर्फ चढ़ता है। जब भी कभी सांस चढ़े, छाती में दर्द हो, जब भी जरा सा थोड़ी सी बड़ी उम्र में शुगर या ब्लड प्रेशर की शिकायत हो तो हार्ट के बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर को दिखा के ज़रूर ही बात है ये, इसको करना चाहिए। अब ये बात है कारण क्या है। बहुत बार हमने इस मंच पर भी बात करी है हार्ट अटैक के कारण।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, नंबर 1 कारण जो है वो है ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना। दूसरा कारण जो है वो है सिगरेट स्मोकिंग। तीसरी चीज़ जो है वो है स्ट्रेस का होना, वज़न ज़्यादा होना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब ये कहने का कि अगर कोई आदमी सारा दिन बैठा है, ज़्यादा चलता फिरता नहीं है, ये उसको हार्ट अटैक होने के कारण ज़्यादा रहते हैं। 5, उसके बाद आप आ जाओ कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना। उसके बाद पेट का बड़ा होना भी एक कारण है। दोस्तों ये सब कुछ तो है, पर जो जड़ है, बीज जो है वो ये है कि अगर किसी के माता पिता को या माता पिता के भाई बहन को, मतलब अगर किसी के खून में हार्ट अटैक की बीमारी है, किसी के परिवार में बीमारी है, जीन्स में है, तो उसको हार्ट अटैक होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। ये चीज़ें ऊपर सोने पे सुहागे का काम करती हैं। मतलब ये कहने का ये नहीं है कि अगर नहीं है फैमिली में किसी को तो नहीं हो सकता, ना ही इसका ये मतलब है अगर माँ बाप दोनों को हार्ट अटैक हुआ तो बच्चे को हार्ट अटैक होगा, ऐसा भी नहीं है। ये जो है वो कारण है। ऐसा अगर हार्ट अटैक आ ही जाए तो हम कैसे निवारण कर सकते हैं? ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है कि कैसे पता लगेगा डॉक्टर को कि हार्ट अटैक है। देखिए, मैं सबको बताना चाहता हूँ, सबसे सिंपल जो है चीज़ वो है ईसीजी। ईसीजी से 90% लोगों के हार्ट अटैक का पता लग जाता है। ईसीजी के अलावा ब्लड टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें हार्ट अटैक, जिसमें मसल डैमेज हुआ वो भी पता लग जाता है, और अगर मसल डैमेज नहीं हुआ तो वो भी हमें पता लग जाता है, ब्लड टेस्ट है। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी है। इकोकार्डियोग्राफी बेसिकली हम हार्ट अटैक के लिए नहीं करते, वो देखने के लिए कि पंपिंग कितनी है, पर उसमें हमें पता लग जाता है कि हार्ट का कोई पोर्शन जो है वो मूव नहीं कर रहा, पंप नहीं कर रहा। इसके अलावा और एडवांस टेस्ट है जैसे एमआरआई है, ये है, पर वो हम यहाँ पे उस संदर्भ में बात नहीं करेंगे। सो एक बार जब किसी डॉक्टर ने कह दिया कि हार्ट अटैक हुआ है, यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुई है, तो उसमें इलाज तो इमीडिएटली शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स के पास जब हम जाते हैं वो हिस्ट्री में शक के बिनाते वो इलाज शुरू कर देते हैं। 2-4 मिनट में ईसीजी हो जाती है। जैसे किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में डोर टू नीडल टाइम, मतलब जब हॉस्पिटल में पेशेंट गया है, और जैसे हमारे रतन हॉस्पिटल में भी पेशेंट डोर पे रिपोर्ट किया और उसके नीडल लगने का टोटल टाइम 2 से 3 मिनट का है, तो कि इलाज शुरू हो गया, रिपोर्ट ईसीजी में आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है? देखिए, ये जो हार्ट अटैक होता है, ये जो नाड़ियाँ, जो आर्टरीज़ हैं, जो कॉर्नरी आर्टरीज़ हैं, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनमें ब्लॉकेज की वजह से ये हार्ट अटैक होता है। इमीडिएटली अगर पेशेंट 3 घंटे से पहले आ जाता है तो बहुत अच्छा एक तरीका है, एक इंजेक्शंस आ गए हैं जिनको हम क्लॉट बस्टर्स कहते हैं या थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं। वो इंजेक्शन अगर लग जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 80-90% चांसेस हैं कि जो क्लॉट है वो डिज़ोल्व हो जाए और मसल डैमेज होने से पहले ही दोबारा ब्लड मिल जाए, उसको ठीक हो जाए। सो दोस्तों, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि किस हॉस्पिटल में ये इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं, कहाँ पे ये इलाज है। अगर आप लेट हो गए हो तो इंजेक्शन का फ़ायदा तो होता है, कम होता है, पर लगाया जा सकता है, ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और टेस्ट होंगे जैसे कि देखने के लिए कि शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर कितना है, किडनी का क्या स्टेटस है, लिपिड प्रोफाइल बड़ा ज़रूरी है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल और एचडीएल। इसके अलावा और कार्डियक एंजाइम्स भी टेस्ट होते हैं, एक्सरे चेस्ट करना भी ज़रूरी है, और इकोकार्डियोग्राफी। ये सारे टेस्ट होके इलाज के साथ साथ चलता है। अब आ गया कि अगर हमने इंजेक्शन लगा दिया, नाड़ी खुल गई है, तो फिर उसके बाद 2 है। आगे तो था कि हम सिर्फ एंजियोग्राफी करते थे। एंजियोग्राफी से हमें पता लग जाता है कि कौन सी नाड़ी कितनी ब्लॉक है, क्या पोजीशन है, आगे का क्या प्लान है। तो सर, रतन हॉस्पिटल जो माना गया है ईसीपी के लिए, क्या है ये ईसीपी का प्रोसीजर जिससे आप उन पेशेंट्स को जिनको बोला जाता है कि आपके स्टंट भी पड़ेंगे, वो लोग भी एक नई ज़िंदगी लेकर जाते हैं रतन हॉस्पिटल से? क्या कहना चाहिए? अच्छा सवाल किया है। देखिए, कुछ देर पहले तक तो, मतलब कुछ देर नहीं, 20 साल हो चुके हैं, 20 साल से भी ज़्यादा, हमारे पास क्या था कि हम एंजियोग्राफी करके स्टेंट डालते थे या बाईपास करते थे। स्टेंट जो है वो जो नाड़ी ब्लॉक है उसको खोलते हैं। अगर 4 जगह पे ब्लॉकेज है तो 4 स्टेंट है, जो रिस्की भी है, एक्सपेंसिव भी बहुत है।
और बहुत दफ़ा देखा गया है जब 3 नाड़ियाँ ब्लॉक होती हैं तो कई बार हॉस्पिटल वाले एक नाड़ी जो ज़्यादा ब्लॉक है उसको उसमें स्टेंट डाल देते हैं, फिर लोग दूसरी स्टेंट में दूसरी नाड़ी में स्टेंट डलवाते हैं, फिर तीसरी में। मेरे पास ऐसे लोग भी आए हैं जिनके 8-8 10-10 स्टेंट पड़े हुए हैं। बट अब हमारे पास जो हम पिछले 20 साल से करीब ये कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वैसे तो दुनिया में ये एक बड़ी देर से हो रही है, अमेरिकन टेक्निक है ECP या EECP भी कहते हैं। इस विधि से ये एक्सटर्नल टेक्निक है, इसमें जो अंदर नहीं जाना पड़ता, अंदर नहीं जाते तो जितनी मर्जी नाड़ियाँ ब्लॉक हों सबका ही इसको नेचुरल बाईपास हम कहते हैं। भगवान ने जब शरीर बनाया था तो ये नहीं पता था कि डॉक्टर आ जाएंगे। हार्ट की जो नाड़ियाँ सप्लाई करती हैं, बहुत सारी ऐसे नसें होती हैं, आर्टरीज़ होती हैं जो ब्लॉक पड़ी रहती हैं। ECP विधि से हम उनको खोलते हैं। होता क्या है हार्ट अटैक? खून की नाड़ी बंद हुई, कुछ एरिया हार्ट का ऐसा मसल का है पोर्शन जिसको ब्लड नहीं जाता। जब ब्लड नहीं जाता उसको दर्द होती बहुत तेज़। अगर वो नहीं खुलती टाइम से तो उसमें वो जो एरिया जो है मसल का वो तकरीबन 6-8-10 घंटे में वो डेड हो जाता है, इन्फार्क्ट कर जाता है। ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। ये जो विधि है इसमें क्या है कि जहाँ पे ब्लड नहीं मिल रहा वहाँ पे जो नाड़ियाँ बंद थी वो खुल जाती हैं, वहाँ पे ब्लड जाना शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कि दर्द थोड़ा चले दर्द हो गई, गोली सॉर्बिटेट की खा ली, थोड़ा चले सांस चढ़ गया, जिनको अपने कमरे में बाथरूम में जाते हुए भी सांस चढ़ता था, चाहे अटैक हुआ था या वैसे इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ थी, वो लोग भी ECP विधि से 2-2, 3-3 किलोमीटर सैर कर रहे हैं। आज हज़ारों पेशेंट्स का हम इलाज कर चुके हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि जो पेशेंट की जो केस सिलेक्शन है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि किस पेशेंट को ये करना चाहिए। जो आपने बात करी है कि ये विधि जो उनके लिए जिनके स्टेंट भी नहीं पड़ सकते, अक्सर कहा जाता था पहले कि दिस इज़ नो ऑप्शन, मतलब अगर किसी के ना वो बाईपास करवा सकता है उम्र की वजह से, शुगर की वजह से, कोमॉर्बिडिटी और बीमारियों की वजह से, शरीर कमज़ोर है या कोई भी और अन्य बीमारी की वजह से, ना ही वो स्टेंट डलवा सकता है कि नाड़ियों में ऐसी जगह पे है जहाँ स्टेंट नहीं डाल सकता, तो ये कहते थे उसके लिए ये ECP है। पर अब अमेरिका में डॉक्टर्स कहना शुरू हो गए हैं कि अगर ये उन मरीज़ों के लिए कामगर है जिनमें स्टेंट पड़ नहीं सकते या जो बाईपास नहीं करा सकते, तो ये उनमें भी क्यों नहीं कामगर होगी जो स्टेंट भी डलवा सकते हैं बाईपास में। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आज पहले तो मैं आपको सलाह दूंगा कि हार्ट अटैक से बचना चाहिए। बचने के लिए जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वज़न, स्ट्रेस, ये सारे मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं। वेट, जो आपने वज़न का बोल दिया, सिर्फ एक फैक्टर मॉडिफाइबल नहीं है, वो है जो अगर आपके पेरेंट्स को है। ये जो 6 फैक्टर का अगर आप यूजुअल लाइफ में अपने ख्याल रखें तो ये जो है आप हार्ट अटैक से बहुत देर तक बच सकते हैं। हो सकता है कि आपको हो ही ना, अगर हो गया है तो भी आपको अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवाना चाहिए। जो आपके शुगर अगर है, ब्लड प्रेशर है, जो डॉक्टर जो है वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका वज़न कम हो जाए, आपका खून पतला हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसका भी इलाज देंगे, ताकि जो ताड़ियाँ टाइट भी हो गई हैं उनमें से भी ब्लड फ्लो करता रहे। जैसे अगर हम BP की बात करें जो कि एक साइलेंट किलर माना जाता है, और BP वाले लोग क्या करते हैं, एक दिन मेडिसिन ले ली, बीच बीच में उसको मेडिसिन नहीं लेते, और उसके कारण भी कई बार जो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स आ जाती है। देखिए, ये एक विडंबना है कि ब्लड प्रेशर जो है ये साइलेंट किलर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्या मतलब है कि इट किल्स साइलेंटली, बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी बात के। ब्लड प्रेशर की ना सिरदर्द कईयों को होती है, वो बदकिस्मत लोग हैं। अब बात आ गई, कई दफ़ा देखा गया है, कुछ बार ऐसा भी मेरे को लोगों ने कहा, शायद वो गलत हो, कि BP ठीक हो गया, डॉक्टर साहब कहते हैं अब तो तुम्हारा BP ठीक है, तुम दवाई क्यों खा रहे हो। दोस्तों, एक बार अगर आपका BP ज़्यादा है, अगर दवाई खाने से ठीक हुआ है तो वो दवाई आपको खानी ही पड़ेगी। आप BP की दवाई बंद नहीं कर सकते, ये याद रखना। जैसा अगर हार्ट की पंपिंग कम हो तो क्या ECP उसमें भी कारगर है? मेरे पास आज भी पेशेंट दाखिल किया है, उसकी पंपिंग जो है सिर्फ 18% है,
जो 65 से 70% नॉर्मल है। अगर पंपिंग कम है तो ना बाईपास का रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, स्टेंटिंग का रिस्क भी ज़्यादा है। दोस्तों ईसीपी टेक्निक ऐसी है, याद रखना, अगर किसी की भी ईएफ इजेक्शन फ्रैक्शन या हार्ट की पंपिंग परसेंटेज कम है तो उसको ईसीपी उसके लिए एक बहुत बढ़िया और बेस्ट इलाज है। कई बार ईसीपी के बाद पंपिंग बढ़ जाती है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। जिनके पास, तभी कहते हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास ईसीपी की ऑप्शन है। ईसीपी के फ़ायदे क्या हैं? एक तो ये टोटली हार्मलेस है। इस पे हम जैसे हर छोटी से छोटा ऑपरेशन के लिए हम साइन करवाते हैं, ईसीपी में हम साइन नहीं करवाते क्योंकि आज तक इसका कहीं साइड इफ़ेक्ट हुआ ही नहीं, कोई इसका डैमेज नहीं हुआ। दूसरी ये चीज़ है, ये एक्सटर्नल है, बॉडी के अंदर नहीं जा रही। तीसरी बात ये है कि ये स्लो है, ये नेचुरल है, इसने अंदर की नाड़ियाँ खोल देनी है। कई बार मुझे लोग प्रश्न पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जो नाड़ी बंद है वो भी खुल जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहते तो इसको नेचुरल बाईपास है, दैट मीन्स नई नाड़ी खुलती है, पर मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने एंजियोग्राफी कराई। जब उन्होंने एंजियोग्राफी कराई तो उनकी जो बंद नाड़ी थी वो भी खुल गई। सो दोस्तों, ईसीपी से सिर्फ हार्ट अटैक नहीं, अधरंग के मरीज़ों को भी ईसीपी, और मैंने देखा है कि ईसीपी से लोगों की इंसुलिन की डिमांड कम हो गई है, शुगर की। जो ईसीपी है, ये जो गुर्दे जिनके ठीक नहीं है, क्रेटिनिन और यूरिया बढ़ा हुआ, उनका क्रेटिनिन यूरिया भी कम हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप लिटरेचर में सर्च करेंगे तो आपको ये मिलेगा। सो ईसीपी एक बहुत बढ़िया टेक्निक है। मैं फिर से ये बात कहूँगा जाने से पहले कि दोस्तों, हार्ट अटैक बहुत नामुराद चीज़ है। जैसे पहले कहा गया कि जब भी किसी परिवार में होता है तो एकदम से जैसे दहशत सी हो जाती है कि अब क्या बनेगा, और गलत नहीं है। हार्ट अटैक ही एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कोई भी डॉक्टर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होगा, बट इससे बचना मुश्किल नहीं है। इसका इलाज मुश्किल भी है और ख़तरनाक भी है। आप अपने जान को, अपने शरीर को खतरे में मत लाओ। जो चीज़ें, 5 चीज़ों का अगर ध्यान रख लो तो आप अपने लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वज़न और कमर का घेरा, अगर ये 5 आप नॉर्मल करें तो आप अपना ध्यान रख रहे हैं। तो जो मेगा कैंप लगने जा रहा है 1 जून से 30 जून तक, क्योंकि पे बैक टू सोसाइटी आपके हमेशा मन में रहता है कि मैंने कोई ना कोई सेवा करनी है, और उसमें आप पेशेंट्स के लिए 1 जून से 30 जून तक, क्योंकि उसमें छुट्टियां भी हो रही हैं बच्चों को, पेरेंट्स फ्री भी हैं जो चाहते हैं कि हमने अपना चेकअप कराना है, उनके लिए आप ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ईसीजी और काफ़ी टेस्ट जो हैं रवायती दोनों के ऊपर, और ये ब्लड शुगर, बीपी और ईसीजी जो बिल्कुल फ्री होगी। जो भी पेशेंट आना चाहेंगे वो आ सकते हैं। एंजियोग्राफी का भी यहाँ पर है, वो भी आपको रवायती दरों में मिलेगी। और 1 से 30 जून तक ये आप मेला ही है, एक तरह का स्वास्थ्य मेला जो यहाँ पर लगा रहेगा। आप लोग आ सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सेवा देने के लिए भी। रिची जी, अगर आपने अनाउंस कर ही दिया तो मैं अपने आपके दर्शकों को पंजाब प्लस के ये कहना चाहूँगा कि 1 जून से 30 जून तक फ्री कंसल्टेशन है। अगर कोई भी पंजाब प्लस का नाम लेके आता है, फ्री ब्लड शुगर टेस्ट होगी, ब्लड प्रेशर होगा और ईसीजी भी फ्री होगी। अगर उसको फर्दर किसी टेस्ट की ज़रूरत है वो भी आधे रेट पे उनको ऑफ़र दी जाएगी अगर वो करवाना चाहें। आपने स्वास्थ्य मेले का नाम लिया, बहुत इम्पोर्टेंट है आज स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जानकारी देने का और उनको इस बारे में अवेयर कराने के लिए, ताकि वो बीमारी में फंस के अपना समय, पैसा और जान को बर्बाद ना करें। डॉक्टर साहब, आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को अवेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ऐसी पद्धति जिसके साथ उन क्रोनिक से क्रोनिक पेशेंट्स को जिनकी हार्ट की नाड़ियाँ ब्लॉक हैं, जिनका हार्ट का पंपिंग रेट कम है, आपने एक ऐसी टेक्निक जिसे 20 साल से आप जो भी पेशेंट इस चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, क्योंकि बुजुर्ग होते हैं, लोगों का प्यार होता है और इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। आपने 80-80, 85-85 साल के लोगों को भी नई ज़िंदगी दी है ईसीपी के साथ। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हार्ट अटैक के बारे में किसी भी तरह का कोई भी सवाल आपके मन में है
तो आप हमारे हॉस्पिटल में नंबर जो स्क्रीन पे आए हैं पर मैं भी बोल देता हूँ 9814098140 22772 22772 98140 22772 ये जो नंबर है, आप इस पे जब मर्जी व्हाट्सएप करके रिपोर्ट्स भेज सकते हैं या कुछ भी सवाल हो आप ईसीपी के बारे में, हार्ट के बारे में या किसी भी बीमारी के बारे में पूछ सकते हो। मैं डॉक्टर बलराज गुप्ता आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपसे इजाज़त लेता हूँ। सदा खुश रहो, स्वस्थ रहो। नमस्कार, सत श्री अकाल।